الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها دخلت علي أبي رسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذ بالله يبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة إلا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد وأقبل عند ذلك الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا حسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء أقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلى الله صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري
ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلى الله عليه وسلم. وقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. وهبط أمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. قال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. قال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموما إلا فرج الله همه، ولا مهموما إلا كشف الله غمه، ولا طالب حاجة أو وقى الله حاجته. قال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. परदेस नभ खो बैठी 18 बरस के पाले को रोते खड़े सबला रोते खड़े
लबानों का ऐलाश बनो बानों का पाएगा ये गोजरी पाएगा ये गोजरी मुरादों से पाला शादी का ज़माना जब आया मैदान में घोर बैठ गई मैदान में घोर बैठ गई के बारे को किस्मत करूं मैं किसे से गिला खिदमत का एवज़ कुछ भी न मिला सेहरा बिना रघुबान सकी सेहरा बिना नबुबान सकी 18 बरस के बाद मालिक से बरे करके उजड़ा जाने को पूछो घर वालों से तफरीका पड़ जाने को पूछो माँ बाप से किस्मत के बिगड़ जाने को पूछो शबीर से अकबर के बिगड़ जाने को पूछो शबीर से अकबर के बिगड़ जाने को पूछो अल्लाह ना दिखलाए नूरे नजर का बह जाता है आंखों से लो फरवा जिगर का बह जाता है आंखों से लो फरवा जिगर का जिस वक्त के अकबर को लगा जख्म जिगर का सीने में रुका के समुद्र के टमाटा गिरते हुए घोड़े से ख्याल आया किधर का चिल्लाएंगे हमको दुनिया से बिदर का चिल्लाएंगे हमको दुनिया से बिदर का बेकस की मुसाफिर की खबर लीजिए बाबा अपने अली अकबर की मदद कीजिए बाबा अली अकबर की मदद कीजिए बाबा अली अकबर की मदद कीजिए बाबा शायदी अली अकबर किधर आए ढूंढे तुम्हें पैर में आंसू भराए बेताब दिल क़ल्ब में लश्कर के दराए तुम उठ नहीं सकते तो मैं लाज पर आए उठ नहीं सकते तो मैं लाज पर आए माँ बाप के जीने का मजा ले
गए बेटा, ओदा जो तुम्हारा था मैं दे बेटा, ओदा जो तुम्हारा था मैं दे बेटा, बेटा मैं फिर यार बता के पुकारूं, मजलूम गरीब गुरबा के पुकारो, नाशाद गिरफ्तार बना के पुकारो, लफ्तिश नो मजबूर खिफा के पुकारो, जो वक्त मुअय्यन है वो हरगिज़ ना टलेगा, खंजर मेरे गरबाई की तरह चलेगा, मेरे गरबाई की तरह चलेगा, ले आई जो बेताब ये दिल लाश सर पर, हर झुकते नजर पहले पड़ी जख्म जिगर पर, एक तीर लगा कल्बे शे जिन्नो बशर पर, सीने पर कभी हाथ तुम्हारा कभी सर पर, कभी हाथ तुम्हारा कभी सर पर के दम उस शेर को भरते हुए देखा, बाबा ने जवाब मेरे को मरते हुए देखा, बाबा ने जवाब मेरे को मरते हुए देखा, शहीदी अली अकबर पिदर आया, उठो मेरे प्यारे मेरे दिल भर पिदर आया, तुम ढूंढते थे मैं अनवर पिदर आया, नाशाद पिदर पे गज़बे पर आया, नाशाद पिदर पे गज़बे पर आया, दिल की कहो बात करो में आओ, सबसे पिलाओ मेरी आगोश में आओ, सबसे पिलाओ मेरी आगोश में आओ, तुमसे तो बोलो अली अकबर अली अकबर, तुमसे तो बोलो अली अकबर अली अकबर, तुमको तो बोलो अली अकबर अली अकबर, तुमको तो बोलो अली अकबर अली अकबर, कुछ मुँह से तो बोलो अली अकबर अली अकबर, आँखों को तो खोलो अली अकबर अली अकबर, रुखसत भी तो लो अली अकबर लो बाप करो अली अकबर अली अकबर, बाप करो अली अकबर अली अकबर, आराम से सोते नहीं बेटा, हम रोते और तुम्हें रोते नहीं बेटा, हम रोते और तुम्हें रोते नहीं बेटा, जज़ाकल्लाह शहज़ादी इस पुस्तक को कबूल फरमाएं। हज़रात, कल से दो मर्द मोमिन, दो अज़ादार मरीज हैं, बीमार हैं। एक कुमैल साहब हैं और एक हैदराबाद से हमारे हैदर रज़ा साहब, मिर्ज़ा हैदर रज़ा साहब हैं। बहुत अलील हैं। आप सभी हज़रात दुआ करें कि परवरदिगार इस फर्श अज़ा के सदके, बीमारी करबला के सदके, बीबी सुहरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके उनको जल्द से जल्द शिफाए कामिल अता फरमाए। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग मरीज हैं, जो जो लोग भी दुआ करने के लिए कह रहे हैं, परवरदिगार उन सबको शिफाए कामिल और अजर अता फरमाए। एक नारे सलवात पढ़ें आप। हम कोई काम नहीं करते खिलाफे मामूल, हम कोई काम नहीं करते खिलाफे मामूल, हमको अल्लाह ने पैदा किया मातम के लिए,
हम कोई काम नहीं करते खिलाफे मामूल, हमको अल्लाह ने पैदा किया मातम के लिए, और जिसकी ताजीम को उठ जाए नबी मसनद से, हमको मांगा है उसी माने मुहर्रम के लिए, हमको मांगा है उसी माने मुहर्रम के लिए। आइए हजरात, जफर भाई से गुजारिश करूँ सवाबन तशरीफ लाएं, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा वक्त कम है और बहुत जल्दी में प्रोग्राम को खत्म करना है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जफर भाई से मुख्तसर और नारे सलवात से। कह के अब्बास ने चुल्लू से ये फेंका पानी, कह के अब्बास ने चुल्लू से ये फेंका पानी, सीख इंसान परखने का सलीका पानी। कह के अब्बास ने चुल्लू से ये फेंका पानी, सीख इंसान परखने का सलीका पानी, और पाए अब्बास से टकराया था बहता पानी, पाए अब्बास से टकराया था बहता पानी, देखना ये है कदम ठहरे के ठहरा पानी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। देखना ये है कदम ठहरे के ठहरा पानी। एक दरूद पाक का सलाम। सितम में कितनी भी ताकत हो पर अली वाले, सितम में कितनी भी ताकत हो पर अली वाले, कलाई जबर की हंसकर मरोड़ देते हैं, और गुलाम अकबर गाजी हैं हमसे मत उलझो, हम अपने सीनों पे नेज़ों को तोड़ देते हैं। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार कोशिश को कामयाब करे और इस 4 मिसरों को परवरदिगार कबूल फरमाए। बड़े ही अकीदत के साथ जफर भाई ने पेश किया। 4 मिसरों से मैं भी चाहता हूँ कि आगा का इस्तेमाल कर दूं, क्योंकि आज मुझे बार बार हुक्म हो रहा है कि मजलिस जल्दी खत्म होनी है। तो बहरहाल 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा हैं, इसलिए देख कर पढ़ रहा हूँ कि दिखाया था जो 72 ने बू तुराब का रंग, दिखाया था जो 72 ने बू तुराब का रंग, है करबला में अभी तक उस इनकलाब का रंग। दिखाया था जो 72 ने बू तुराब का रंग, है करबला में अभी तक उस इनकलाब का रंग। चढ़ा है इस तरह दीने खुदा के चेहरे पर, चढ़ा है इस तरह दीने खुदा के चेहरे पर, कभी ना उतरेगा अकबर तेरे शबाब का रंग, कभी ना उतरेगा अकबर तेरे शबाब का रंग। परवरदिगार इन्हीं शोहदाए करबला और रुसनाए करबला के तसद्दुक से तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी मातमदार हैं अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए हज़रात, बस अदब गुजारिश की जाए अली जनाब मौलाना सैयद आसिफ हुसैन साहब से तो तशरीफ लाएं, इनकी सेहत और सलामती के लिए एक बाआवाज़ बुलंद पढ़कर इनका इस्तकबाल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद
फिल कुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कुरान हकीम के इंतहाई मशहूर सूरे की इब्तिदाई आयात जो मुसलसल आपकी खिदमत बाबरकत में तिलावत का शरफ हासिल हो रहा है, जिसमें इरशाद इलाही हो रहा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो तस्बीह इलाही में मसरूफ ना हो। माबैन ज़मीन व आसमान जितनी भी खालिक की खिलकत है सब की सब तस्बीह इलाही में मसरूफ है। ये और बात है कि हम उनकी तस्बीह को नहीं समझ पाते, नहीं दर्क कर पाते, लेकिन हर मखलूक जो है वो तस्बीह रेज़ है। माबैन ज़मीन व आसमान खिलकत की जब बात आती है तो एक बात जरूर उभरती है कि खालिक और मोजिद ये दोनों लफ्ज जो है इनका फर्क जो है वाज़े होना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में किसी ने कोई शय ईजाद की तो वो अपने को खालिक ही समझने लगता है। हर मोजिद अपने को उसका खालिक समझता है, हालांकि बहुत बड़ा फर्क है खालिक और मोजिद में। मसलन ये सामने ये टैब दिखाई दे रहा है आपके, जिसने भी इसको इजाद किया पहली मर्तबा और इजाद करने के बाद दुनिया इंसानियत के हवाले किया, तो उसे नहीं मालूम था कि ये हमारे दुश्मनों के पास जाएगा कि दोस्तों के पास जाएगा, कौन कौन इससे इस्तेफादा करेगा। इसका मतलब यह है कि इजाद करने के बाद उसका इससे कंट्रोल हट गया। जब भी उसने इजाद किया, ठीक है, उसने उस वक्त जो भी उसके जहन में रहा होगा, जितनी भी इजादात है आज की दुनिया में, और देख ले पूरी दुनिया पे नजर दौड़ा के, तो जो जो भी इजादात आपको नजर आ रही है उसमें एक मैसेज जरूर मिला है कि हर मोजिद समझता तो ये है कि मैं ही इसका खालिक हूँ, लेकिन वो इस फर्क को समझ नहीं पाता कि ईजाद करने के बाद उसका कंट्रोल उससे हट जाता है। लेकिन खालिक जो है वो किसी चीज को खल करने के बाद उसके कंट्रोल से अपना हाथ नहीं हटाता। उसकी वजह ये है कि जिस चीज शय को भी खल किया उसने कंट्रोल इतना रखा कि जा तो रहे हो दुनिया में, लेकिन जब हम बुलाएंगे तो वापिस आना होगा। कंट्रोल उसने नहीं खोया। और यही एक मोजिद और खालिक के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। यानी मोजिद कोई भी शय बनाता है तो मैंने कहा ना कि वो नहीं समझ पाता कि वाकई इससे हमारे दुश्मन फायदा उठाएंगे या दोस्त फायदा उठाएंगे, और होता यही है कि उसका कंट्रोल फिर उस पर नहीं रहता। आज की दुनिया में जितनी भी आपके फायदे की चीजें हैं उसमें, इसीलिए मैं अपने नौजवानों से भी बराबर अर्ज ये करता हूँ कि उसके मुस्बत पहलू पर नजर रखा करें, मनफी पर नहीं। क्योंकि हर शय में, क्योंकि दुनिया का ये जो दस्तूर है उसमें जो भी चीज वो खल कर रहे हैं, ईजाद कर रहे हैं, अपनी समझ से वो खल करते हैं, लेकिन जो ईजाद कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि इससे जो भी खराबी होगी और जो भी वजूद में आएगी खराबियां, उसमें हमारा हिस्सा हो या ना हो, लेकिन हम तो दुनिया को इसी रास्ते पे लगा रहे हैं। लेकिन अब आपका क्या काम है, उससे आप मुस्बत पहलू निकाले, मनफी नहीं। अब जितनी भी चीजें आपके साथ है, एक तो सबसे बड़ा सरदर्द, मैं तो मुस्तकिल कहता हूँ, ये आज की दुनिया में सबसे बड़ा सरदर्द है ये। सोते सोते न जाने कितनी मर्तबा हाथ से छूट के गिरता है, लेकिन गिरने नहीं पाता। वो भी बड़ा जिद्दी है, गिर जाता तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद याद आता कि गिर गया है, तो फिर आंख खुल जाती। इसका मतलब ये है कि बिस्तर पे भी वो साथ नहीं छोड़ता। अच्छा सहाबी है,
किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ता। अब इससे आपको क्या करना है? इससे आपको यही करना है कि इसके मुस्बत पहलू पर निगाह रखें और हो सके तो तदीये औकात न करें, तदीये औकात न करें। मेरे नौजवानों, लब अगर गाढ़ा ना हुआ हो तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं कि इस पे वक्त जाया मत करें। टाइम तो वैसे भी गुजर रहा है बड़ी तेजी से और गैर महसूस तरीके से गुजर रहा है। एक दिन मैंने इन्हीं मजलिसों में अर्ज किया था आपसे, गैर महसूस तरीके से बड़ी तेजी से टाइम गुजर रहा है। जैसे आपका बाल का बढ़ना आपको महसूस नहीं होता, दाढ़ी का बढ़ना आपको महसूस नहीं होता, वैसे जमाना भी तेजी के साथ गुजर रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। तो इस पे जितनी देर रहें कोशिश करें कि मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया तक पहुंचाए, जिस कदर मुमकिन हो सके अपना हिस्सा जरूर इससे डालें। और इसमें ज्यादा जहमत की जरूरत भी नहीं है। इस वक्त परेशानी ये नहीं है कि फिर आपको हवाले ढूंढने हैं तो कहाँ जाएंगे और किस जगह जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। बस कोशिश ये करें कि तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया तक जिस कदर भी मुमकिन हो सके पहुंच जाए। अब रह गई बात कि उसको पहुंचाने में भी थोड़ी सी एहतियात ये जरूरी है। वही बात फिर आती है, मुस्बत पहलू पर अगर निगाह रहेगी तो हमेशा मुस्बत ही मैसेज जाएगा, मनफी नहीं जाएगा। वरना तो कुछ चीजें मनफी भी ऐसी आती है कि उसमें आपका टाइम जाया हो जाएगा। और टाइम जाया करने के लिए तो वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं। एक यही क्या, इससे बेहतर ये है कि तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्योंकि वक्त अजीजों बहुत कम है। हम समझते हैं कि जिंदगी में बहुत बड़ा वक्त हमें मिला हुआ है, वक्त यकीनन हमारी जिंदगी में बहुत मुख्तसर था। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, वैसे होता है। जब तक जिंदगी वाकई समझ में आती है तब तक आधी खर्च हो जाती है। जिंदगी जब तक समझ में आती है तब तक आधी खर्च हो जाती है। आधी जब खर्च हो जाती है तब समझ में आती है कि वाकई जिंदगी किसे कहते हैं। और जब तक तो मतलब मसला ये है कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है, और जो इस उनकी मंजिल पे है उन्हें अच्छी तरीके से इस बात का एहसास होगा। अच्छा, बुजुर्ग किसे कहते हैं? आपकी नजर में बुजुर्ग कौन होता है? कहते साहब जब दाढ़ी पक जाए तो बुजुर्ग है, जब बाल पक जाए तो बुजुर्ग है। बुजुर्ग दाढ़ी पक जाने पे बुजुर्ग नहीं होता, बाल पक जाने पे बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्ग अपने को जब बुजुर्ग समझने लगे तब बुजुर्ग होता है। बुजुर्ग कितने ऐसे हैं कि ये जो आपने पहचान बताई है ना, उस पहचान पे आने के बाद भी वो अपनी बुजुर्गी का कोई एहसास नहीं कर रहे होते। बुजुर्ग जिस दिन से समझ जाए कि वाकई हम बुजुर्ग हो गए हैं तब फिर वो बुजुर्ग है। और बुजुर्ग की एक डिफिनेशन और मैं बताता हूँ आपको, आज नए सिरे से सुनिए। बुजुर्ग उसे नहीं कहते जिसकी दाढ़ी पक जाए या बाल पक जाए। बुजुर्ग माशरे में उसे कहलाने का हक है शरीयत की रूह से, जो हक को हक कह सके, बातिल को बातिल कह सके। मतलब उसकी बुजुर्गी का कोई फायदा नहीं है माशरे में, समाज में उसकी बुजुर्गी का कोई फायदा नहीं है अगर वो हक को हक और बातिल को बातिल न कह सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ठीक है कि बाल का पक जाना या दाढ़ी का पक जाना वो कोई वो मालूम नहीं रखता है। हाँ, जिस दिन उसको वाकई इतना एहसास है कि अब हमारे जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां आ गई हैं तो वाकई फिर वो हक को हक और बातिल को बातिल कहने का जज्बा अपने दिल में पैदा कर लेगा। उसकी वजह यह है कि हमें तारीख ने दिखाया कि बुजुर्गी क्या है। आहा आहा आहा, हम तो कहीं और नहीं जाएंगे अब इस घराने से हटके। हमें तारीख ने बताया कि एक बुजुर्ग की शान क्या होती है। मैंने जो जुमला सर्व किया है वो जाया ना हो जाए कि बुजुर्ग उसे कहते हैं जो ऐसे भी माशरे में मुखालिफ माहौल में भी हक को हक कह सके, बातिल को बातिल कह सके। एक ही शख्सियत नुमाया नजर आती जो ये कह ले कि ऐसे माशरे में, ऐसे माहौल में सच को सच, हक को हक, बातिल को बातिल कहने का जज्बा रखता था। जहां आलम ये हो गया था कि 3 दिन मुसलसल खाने के बाद इतनी भी मुरव्वत नहीं थी उनमें कि एक लम्हे के लिए भी ठहरते नहीं थे और खाते थे और दफा हो जाते थे।
चलो चलो तो खाना हो गया। दावत खा के इस तरीके से रवाना हो जाते थे। तीसरा दिन आया, एक बुजुर्ग उठा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने कहा आज किसी को भी हिलना नहीं है, अपनी जगह से कोई हटेगा नहीं। कौम या सैयदी, ए मेरे सैयदो सरदार आप उठिए, जो भी कहना हो आपको कहिए। यानी जनाबे अबू तालिब को दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन चश्मे तारीख ने देखा कि बातिल को दबाया, हक को उभारा। समझ में आया कि बुजुर्ग किसे कहते हैं? ओ या सैयदी, ए मेरे सैयद और सरदार आप खड़े हो जाइए, जो कुछ भी कहना हो कहिए। आज पूरी दुनिया सैयदी कहे, सैयदी या रसूल अल्लाह कहे, ठीक है कहती रहे, लेकिन सबसे पहले जिसकी जबान पर यह दुनिया जारी हुआ उसका नाम अबू तालिब है। तो दुनिया किसी और की तासी में नहीं, अबू तालिब के अदा किए हुए जुमले की तासी में आज सैयदी कह जाइए। मेरे सैयदो सरदार उठिए, जो कुछ भी आपको कहना हो कहिए। और उसके बाद आलम यह है कि तारीख ने लिखा कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, न जुर्रत हुई कुछ बोलने की, न कुछ कहने की। बिल्कुल माहौल ऐसा हो गया कि जैसे लोगों के सरों पे तार बैठा। एक लम्हा ऐसा भी आया कि जिसे नुसरत का वादा करना था, उसने उठ के कहा या रसूल अल्लाह मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। और वादा भी ऐसा, एक सलवात भेजे मोहम्मद। अजीजों, ये तो वाकयात सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं या सुनने की हद तक नहीं, इससे कुछ नतीजे तो ऐसे निकलते हैं। पहली मर्तबा दावत तबलीग देना हुआ, वो भी घर के अंदर, बाहर अभी पैगाम नहीं गया, घर के अंदर। चाहे जितने अफराद थे तारीख में इख्तिलाफ के साथ जो भी थे, लेकिन वो घर वाले ही थे। और हुक्म भी यही था कि अपने कराबतदारों को, दूसरों को बाद में, पहले कराबतदारों को। इसीलिए सबसे मुश्किल काम जो तबलीग का है वो अपनों को करना है, बाहर वालों को नहीं। हाँ, जो जिम्मेदारी, और हर शख्स को ये जिम्मेदारी बहुत भारी लगती है। घर के अंदर अपने माहौल में अपने लोगों को बताना और समझाना वो ज्यादा दुश्वार होता है बनिस्बत बाहर के। बाहर तो किसी को कुछ भी कह दीजिए आप। और इसीलिए शायद रसूल के लिए हुक्म भी था, और ये चीज तारीख ने साबित भी की कि घर के अंदर अगर आपका कैरेक्टर इतना बुलंद हो कि बाहर कह सकें, तब फिर वही सीरत नुमाया नजर आती है जो रसूल की सीरत थी। मसलन पहली वही आई, पहली वही गारे हिरा में आई। गारे हिरा जिन्होंने देख लिया है, उनकी नजर में वो पहाड़ी भी होगी और गारे हिरा भी, जो हमारे मोमिन जा चुके हैं, देख चुके हैं। वहां से आने के बाद सबसे पहले कहाँ आ रहे? घर आ रहे। घर में किससे सामना है? ज़ौजा से। बीवी जनाब खतील कुबरा का सामना है। बताना क्या है? कहा पहली वही। किसे बताना है? बीवी जनाब खतील कुबरा को। तारीख कहती है कि अच्छा, ये बात बिल्कुल यूं कह ले कि ऐसी है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाहर चाहे जितना आप अपने कैरेक्टर को वर्णन कर ले, लेकिन घर के अंदर तो आप वही है जो घर में है ना? जोर से बोलिए, डर क्यों है? हकीकत ही है। बाहर की दुनिया में बड़े हीरो आप बनते फिरे, घर में जो है वो सबको पता है घर में हम क्या है। कहते हैं दरवाजे पे पहुंचे ही थे, जनाब खदीजतुल कुबरा ने आपका इस्तकबाल फरमाया। कहा आज खालिक व मालिक की जानिब से पहली वही आई है, पहली वही आई है। जैसे ये कहा, रद्द अमल क्या होना चाहिए? अरे आप ये क्या बता रहे हैं? अच्छा कैसे आई थी, क्यों आई, कब से ऐसा महसूस हो रहा है आपको? तारीख एक जुमला भी ऐसा नहीं लिखती कि जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा ने कोई एक सवाल भी किया, बल्कि फरमाती है ये तो आप आज बयान कर रहे हैं, तो मैं पहले से जानती थी। अल्लाह। अब समझ में आया
कि बीवियां चाहे जितनी हो, मिजाज शनास रसूल फकत एक थी। ठीक है, तारीख ने जितनी भी लिख दिया हो, लेकिन मिजाज शनास रसूल फकत और फकत एक थी। इसीलिए कहा जाता है कि शरीक हयात का जो लफ्ज है ना, शरीक हयात, उर्दू में हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा जाता है शरीक हयात। बीवी का शरीक हयात होना खूबी नहीं है, बल्कि शरीक मकसद हयात होना खूबी। तादाद चाहे जितनी हो, सब शरीक हयात थी, शरीक मकसद हयात फकत और फकत बीबी खदीजा। शरीक हयात होना खूबी नहीं है, शरीक मकसद हयात होना खूबी। तादाद चाहे जितनी लिखी हो। और फिर मैं एक जुमला हदिया कर रहा हूँ, मलिकतुल अरब, क्या खिताब है? मलिकतुल अरब, मलिकतुल मक्का नहीं। मक्का तो बहुत छोटा सा था, आज बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, उस वक्त तो बहुत छोटा सा था। आपका खिताब क्या था? मलिकतुल अरब, पूरे जजीरे अरब की मलिका। और आने वाली बीवियों में और जनाब खदीजतुल कुबरा में यही तो फर्क है कि आपका खिताब ही मलिकतुल अरब था। दूसरी आने वालों के लिए, सबके लिए तो मुझे नहीं कहना, मगर एक जुमला तो जरूर कहूंगा जो खुद उन्होंने कहा कि बाद फतह खैबर पेट भर के खजूरें खाने को मिली। और ये देखिए बकार भाई बैठे हुए, कोई मलिहाबाद का आदमी ये कहे कि मलिहाबाद में इस बार जाके खाने को मिला, तो कुछ हजम होती बात? अरे जिनके यहाँ की काशी खजूर हो और वो कहे कि बादे फतेह खैबर पेट भर के खजूरें खाने को मिली, तब एक लफ्ज बोले बिना तो नहीं रहूंगा। खजूरों की भी तरसी हुई। मलिकतुल अरब से मुकाबला, कुछ बात समझ में आती है? अब फिर मैं एक फर्क दिखा रहा हूँ, बाकी चाहे तादाद में जो भी हो, और मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा में फर्क ये था कि अल्लाह ने सारी बीवियों को बाद में बैतुल माल से पाला। और अल्लाह ने ये शरफ बीबी के हिस्से में रखा कि आपको सुहागन उठा लिया। क्या कहने, समझ रहे ना? बाकी थी बेवाएं, जब बेवा हुई तो उनको बैतुल माल में पाला। अब एक ही तो फर्क नजर आता है, बिल्कुल साफ साफ, दो दो चार की तरह। बाकी अज़वाज को बैतुल माल ने पाला और बैतुल माल को जनाबे खदीजा ने पाला। सलाम भेजे मोहम्मद। मुकाबले के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि साहब ये इस माइक का मुकाबला इससे, लोग कहेंगे भाई जींस का जींस से मुकाबला होता है, भाई टैप का मुकाबला करना है तो किसी टैप से कीजिए, ये क्या मतलब? जहाँ जींस से जींस मिलती हो, क्या कहने, वाह वाह, जहाँ तीनत से तीनत मिलती हो, जहाँ फितरत से फितरत मिलती हो। कहाँ एक तरफ मलिकतुल अरब, कहाँ मैंने ये नक्शा दिखाया आपकी खिदमत में, अब इसका क्या मुकाबला है? और अजीजों, अल्लाह ने भी, कल का जुमला अगर याद हो, अल्लाह ने भी ये शरफ रखा कि अगर आपने इस्लाम की मदद माल से की तो आपको इसके एवज में ऐसी बेटी दूंगा, इस्मत महाब बेटी, मरकज़े तत्हीर बेटी, मरकज़े दायरे इस्मत बेटी। अगर जनाब अबू तालिब ने अपनी कुव्वत और ताकत से इस्लाम को मदद के लिए इतना बड़ा सरमाया दे दिया, तो उसके बदले में कोई और नहीं बल्कि कुल्ले ईमान बेटा दो। क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह।
अच्छा, एक लफ्ज जो भी मैंने सर्व किया आपकी खिदमत में, मरकज़े दायरे इस्मत। देखिए, इस्मत जो है वो दीन की जरूरत का नाम है, दीन की जरूरत का नाम है इस्मत। शरफ अपनी जगह भी, लेकिन दीन की जरूरत, बुनियादी जरूरत का नाम है इस्मत। और शहजादी के लिए लफ्ज है कि मरकज़े दायरे इस्मत है आप। क्यों? आयत तत्हीर के नुज़ूल के वक्त पूरी हदीस की साहब पढ़ के देखें, उसमें उस वक्त तक इंतजार होता रहा जब तक कि शहजादी दाखिल नहीं हुई। वैसे ही जैसे किसी चीफ गेस्ट का इंतजार होता रहता है, जब वो आ जाए तो महफिल शुरू हो, वैसे ही पूरी हदीस किसा में हसनैन अलैहिस्सलाम आ गए, मौलाए कायनात आ गए, खुद रसूल तशरीफ रखते हैं। उस वक्त तक आयत तत्हीर नहीं आई जब तक कि मरकज़े दायरे इस्मत ना वरना जहाँ आयतों का नुज़ूल होता था वो खुद वहाँ चादर में आ गए। अब आयत तत्हीर आने में क्या होती, आयत तत्हीर आ जाती। अब आप पूरी हदीस के साथ तो बराबर पढ़ते रहते ना, आपके तो पेशे नजर है ना कि हसन अलैहिस्सलाम आ गए, मौलाए कायनात भी आ गए, खुद हुजूर तो तशरीफ रखते ही थे। तो जब खुद हुजूर थे तो उस वक्त आयत क्यों नहीं आई, जबकि इतनी आयतें आती थी उनके पास, आयत तत्हीर भी आ जाती। लेकिन जैसे लगता है कि चीफ गेस्ट का इंतजार था। अच्छा, ये लफ्ज जो है मरकज़े दायरे इस्मत, अब इसको मैं इस तरीके से भी आपके सामने रख सकता हूँ ना। मरकज और दायरा, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि कभी आप सोचिए, मरकज और दायरा, दायरा अब ये बचपने की बात अगर याद दिलाओ ज्यादा आसानी हो जाएगी उसको समझने में। जब आप छोटे थे और जाके दायरा बनाते थे, वो क्या कहते हैं उसको, प्रकार। प्रकार का दोनों सिरा एक जगह पे नहीं होता। जब भी आपको दायरा बनाना होता है, एक सिरा जो है एक पॉइंट पे यहाँ, और दूसरा जो है वो सिरा जो है घुमाया जाता है, दूसरा सिरा घुमाया जाता है, तभी एक दायरा बनता है। अब उस दायरे को बनाने के बाद अगर कोई ये पूछे कि उस पॉइंट से जहां आपने दूसरा सिरा रखा है दायरा बिल्कुल सही बना है, पैमाइश के लिए आप क्या करेंगे, क्या तरीका है कि बिल्कुल सही दायरा बना? कहा उस पॉइंट से दायरे की दूरी हर जगह यकसा होनी चाहिए, बड़ा चाहे जितना बड़ा ले, दायरे में पूरा कुवैत आ जाए वो ठीक है, लेकिन ये कि उस पॉइंट से जिससे दायरे की आपको पैमाइश करनी है वहां से हर जगह की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब मैंने जो लफ्ज आपकी खिदमत पे रखा है वो यूं ही नहीं रखा, मरकज़े दायरे इस्मत, दायरे की खूबी और उसकी सही तरीके से पैमाइश उसी वक्त होगी कि उस पॉइंट से हर जगह की दूरी यकसा हो, तब जाके दायरा बिल्कुल सही होगा। आप है मरकज़े दायरे इस्मत। अब समझ में आया कि ये लफ्ज़ हदीस किसा में क्यों है, हुम फातिमतो वमालुहा वबनुहा। रसूल के जरिए क्यों नहीं, मौलाए कायनात के जरिए क्यों नहीं? क्योंकि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फासला है, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि कोई फासला नहीं है। इसीलिए इस पूरी हदीस किसा में, हदीस किसा यूं तो पंजतन के लिए है, लेकिन मरकज जो है वो शहजादी कौनैन बीबी फातिमा। खुसूसियत। और अच्छा एक चीज और कभी और किया आपने, कल भी मैंने वो जुमला आपकी खिदमत में हदिया किया था कि जिस वक्त रसूल ने कहा था कि अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ्र न होता, अगर अली न होते तो जहरा का कोई कुफ्र न होता। फिर उसको समझाने के लिए ज़ाहिर उलमा जब उसकी तशरीह करते इस जुमले की यही कि बाहर की जिंदगी में मौलाए कायनात के जितने भी फजाइल हैं उसको बाहर देखते जाओ और जनाब जहरा की अजमत समझते जाओ। खूबियों में, फजाइल में, अगर मौला के मरातिब में जितने भी जीने आप तय कर लें उसको बाहर देखिए और उसके बाद अंदर की जिंदगी में जनाब जहरा को देखिए कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ्र ना होता। क्या बात है।
अब मैं एक मंजर खाली दिखा दूं, और आज की हद तक जाहिर है कि वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है। एक मंजर दिखाता हूं, अब समझ में आएगा कि क्यों फरमाया कि अगर अली न होते तो जहरा का कोई कुफर न होता। एक जमाना ऐसा आया कि एक जाली मुर्दा लाया गया, है ना, बड़ा मशहूर वाक़या। जाली मुर्दा लाया गया और ला के मौलाए कायनात के सामने रख दिया। बुढ़िया साथ में थी। या अली, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दे। क्या पढ़ा दे? नमाज जनाजा, मुर्दा है, नमाज जनाजा पढ़ा। का इसका वारिस कौन है? मौला ने सवाल किया, इसका वारिस कौन है? का ये बुढ़िया। का तू वारिस है? कहा मैं वारिस हूं। जनाजा पढ़ा दूं? फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को। जनाजा पढ़ा दूं? और एक लकब है मौला का, सिद्दीक। सिद्दीक उसे नहीं कहते जो सच बोले, जो कहे दे वो सच हो जाए। जो आ जाए जबान पर वो सच हो जाए। मौला ने ये कह के कि जनाजा पढ़ा दूं, इस जिंदा को जनाजे की कैफियत में डाला है। पढ़ाने जा रहा हूं जनाजा, लेकिन तू वारिस है? कहाँ मैं वारिस हूँ? मौला ये क्यों पूछ रहे हैं बार बार, तू वारिस है, तू वारिस है? कहा यही तो दिखलाना मकसूद है। जनाजे का हर कोई जो है वो मालिक नहीं होता, बल्कि वारिस मालिक होता है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं होता। अब मौला ने तो विचार पढ़ाई थी। अब वो मशहूर वाक़या, वो वाक़े की तरफ नहीं जाना, आपको जो नतीजा देना वो बता रहा हूँ। जब पढ़ा दिया तो कुछ मस्खरे आगे बढ़े। मस्करों को यही नहीं पता होता कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ रोना चाहिए। ये मस्करे की एक तारीफ है, उनको कुछ को नहीं पता होता है कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है। हंसते हुए एक मस्करा आगे बढ़ा, या अली दावत तो आपका ये है, सलूनी सलूनी कबला अन तफकदूनी। और पता एक चादर के नीचे कभी क्या कहना चाह रहा है? आपने किसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी? वो तो जिंदा है। जरा चादर उलट के देख। जैसी चादर उल्टी, अब यहाँ तो बुढ़िया को बचाने लगे। जितने भी तैयार करके लाए थे, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी बुढ़िया को तैयार करके नहीं लाना चाहिए। या अली, मेरा जवान बेटा था। जवान बेटा तो देखा, मैंने 3 मरतबा तुझसे कहा पढ़ा दूं, तुमने कहा कि पढ़ा दे। अब क्यों परेशान है? कहा परेशान तो हूं, लेकिन यकीन भी इतना है, यकीन भी इतना है, जो पढ़ा सकता है वो ठोकर के जरिए जिंदा भी कर सकता है। अब मेरा जुमला रायगा ना हो, अगर अली न होते तो जहरा का कोई कफो ना होता। अब आइए, अगर इस वाक़े की तजदीद जनाब सैयदा से ना हो, आने वाला यहूदी कह रहा है कि मुझे लेके जाना है शादी में, हालांकि उसे भी मालूम है कि कैफियत क्या है, लेकिन एक मर्तबा अर्ज किया, हालांकि आया था रसूल के पास, चाहते तो हुजूर खुद ये फैसला कर सकते थे कि ठीक है मैं बेटी से कह दूंगा, लेकिन जुमला मिलता है तारीख का। उस वक्त आपने फरमाया कि अब मेरी बेटी का वारिस मालिक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी इजाजत नहीं, बल्कि अली से जाके इजाजत। अब मैं ठहर के एक जुमला तो जरूर कहूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या कहा रसूल ने? अब मेरी बेटी मौलाए कायनात के यहाँ है, अली के यहाँ है, अब जाके तुम उनसे इज़्न लो। यहीं पे हुजूर ने एक आने वाली हमारी पूरी नस्लों को एक पैगाम दे दिया। बेटी को भेजने के बाद, शौहर के हवाले करने के बाद, उनके मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। ये हालांकि वाकयात है, बहुत बड़े बड़े पैगाम कि फिर अगर कोई बात फिर पैदा नहीं होगी। आज जो जिन मसाइल कभी कभी ऐसे भी पैदा हो जाते हैं, कोई मसला पैदा नहीं होगा, क्योंकि बेटी अब अपने घर जा चुकी है।
अब वो मौला कायनात के पास आए, अगर आपकी इजाजत हो। मौला ने कहा कोई बात नहीं, मैं जनाब ज़हरा से मशवरा करूं। हाय हाय हाय, यहाँ भी एक पैगाम छुपा हुआ है। अगर चाहते तो कह सकते थे, लेकिन वहां तो दिखलाना मकसूद था कि अगर पैगंबर ने कहा कि यूं ही नहीं कहा, अगर अली ना होते तो ज़हरा का कोई कुफू ना होता। जहाँ हम मिजाज होते हैं वहां कोई ऐसी बात नहीं, खुद अकेले फैसला नहीं लेते। जाके शहजादी से कहा, शहजादी ने कहा अबुल हसन आपको तो मालूम है मेरे पास इस वक्त जो रिदा है उसकी कैफियत क्या है। सुनिएगा बस आखिरी लम्हे, आपको पता है कि मेरे पास जो इस वक्त रिदा है उसकी कैफियत क्या है। मौला ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वो बहुत जिद कर रहा है, और आप तो खातून जन्नत है, आपके लिए क्या वईद है, अभी चाहे तो जन्नत से जोड़ा आ जाए। बस ये कहना था कि एक मर्तबा शहजादी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। यानी ये भी बतलाना मकसूद था कि कायनात ये न समझे कि अगर हम घरों में फाके करते हैं, हमारी कैफियत ये है, तो हम इख्तियार नहीं रखते। इख्तियार वो रखते हैं कि अगर इधर आवाज दे तो जन्नत से बच्चों के लिए भी लिबास आता है और हमारे लिए भी लिबास आता है। अब इसके बाद जो कैफियत है वो तो आपकी सुनी हुई है कि जनाब ज़हरा गई, शहजादी गई उसके घर, नूर की ताब ना लाके दुल्हन बेहोश हुई। कैफियत ये हो गई कि इस दुनिया से ही सिधार गई। वहां तो मंसूबा कुछ और था, अल्लाह के बनाए हुए मंसूबे का कोई मुकाबला कर सकता है? फिर वही बात आई कि अगर आप चाहेंगी तो गई हुई जिंदगी वापस आ सकती है। बाहर की दुनिया में अली ने दिखाया, घर के अंदर की दुनिया में शहजादी ने दिखाया। हम मौत और हयात पर इस कदर इख्तियार रखते हैं, लेकिन जब इम्तिहान की मंजिल आती है तो यही इख्तियार खालिक की रजा बन जाता है। तेरी जो रजा हो, तेरी जो रजा हो। हाँ आज़ादारों, बस बड़ी तेजी के साथ ये दिन गुजरते हैं, वाकई लग ही नहीं रहा है कि अच्छे मुहर्रम हो गए। इस कैफियत में, इस अंदाज से मजलिस इस बार हुई, बड़ा एहसास हो रहा है। बहुत ज्यादा दुख भी है इस बात का कि हम उस तरीके से अदा नहीं कर सके, लेकिन जनाब शहजादी को तो पता है ना हमारे दिलों की कैफियत तो अच्छी कि किस तरीके से अदा का एहतमाम हो रहा है। बोला तमाम अज़ादारों की हिफाजत करता है अल्लाह, जहाँ जहाँ भी बरकत बिछाए उनके मोमिन बैठे हुए इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में। अजीजों, मैं क्या अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, जिस शहजादी का जिक्र करना है उसके लिए बस इतना ही सुन लें कि जब खुद मजलूम करबला ने कहा जब मुझे नाना की ज़ियारत मकसूद हो तो मैं अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करूंगा। कहते हैं कि बहुत दूर से एक एराबी आया और उसने कहा कि मैंने एक मन्नत मानी थी कि हमारी ये मुराद पूरी हो जाएगी तो मैं रसूल की ज़ियारत करूंगा, मुझे ये शरफ हासिल नहीं हुआ, तो क्या कोई ऐसा जरिया है कि मैं अपनी मन्नत को बढ़ा दूं? मौला ने कहा ठहर जा, और किसी से कहा जाके अली अकबर को बुला के लेके आओ। तारीख कहती है कि जनाब अली अकबर आए और वो बार बार सूरज देखता था और मौला के चेहरे पे नजर। आका जैसे मैंने सुना था रसूल का चेहरा ऐसा था, बल्कि मैंने कभी कभी ख्वाब में भी देखा क्योंकि मुझे मन्नत पढ़ा दी थी, बेऐन ही वही सूरत है। अब समझ में आया, रवायत का फिक्रा है कि जब अली अकबर बहुत छोटे थे, गहवारे में थे ना, मौला रात को उठ उठ के गहवारे के पास जाते थे और जनाब लैला के कहती थी हमारे बच्चे के पास ये कौन है? आवाज देते थे लैला मुझे रातों को इसकी मोहब्बत मुझे सोना है। अज़ादारों, एक रवायत एक हमारे बड़े मशहूर खतीब ने पढ़ी थी, मैं उसके हवाले तो शायद इस वक्त न दे पाऊँ, लेकिन उनके एतबार पर, और मुझे पूरा एतबार है, और मसल के वो ऐसे खतीब थे कि मैं समझता हूँ कि जो भी बात पढ़ते थे वो सनद के बगैर नहीं पढ़ते थे। अल्लाह गनी की रहमत करे, अल्लाह तारीफ जौहरी साहब उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्होंने एक रवायत पढ़ी, बस अज़ादारों वो रवायत और थोड़े से मसाइल जनाब अली अकबर,
क्योंकि अब रोने के दिन है, अब इसमें कभी होना ही नहीं क्या, क्योंकि पता नहीं कौन अगले साल इस पर शादा पर हो, क्योंकि जिंदगी और मौत का किसी को पता नहीं होता है। उन्होंने एक रवायत पढ़ी थी और मुझे वो रवायत मैंने जब सुनी उनसे, मैंने कहा नहीं मैं उस वाले की मंजिल में नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन इतना मोतबर नाम है और खास तौर से मक्तल के हवाले से वो जब भी कोई रवायत पढ़ते थे वो मक्तल से बड़ा अबूर था। वो कहते हैं कि सरकार मजलूम करबला का सर जिस नहदे पे था उसे खूली ने उठा रखा था, खूली ने उठा हुआ था, और जनाब अली अकबर का जिस नहदे पे सर था उसे दूसरे मलूम ने उठाया हुआ है। कहते हैं कि एक मंजिल वो आई कि ये कूफे के शहर में जब दाखिल हुआ काफिला तो जनाब अली अकबर का सर किसी दूसरे घर में था और मजलूम करबला का घर किसी दूसरे घर में था। रात का एक हिस्सा गुजर चुका था कि खूली ने देखा कि जिस जगह सर हुसैन रखा हुआ था वहां सर हुसैन नहीं है। खूली जैसा कि मौला का सर मैंने यहाँ रखा था, ये गया कहाँ? शायद इस घर वालों ने कहीं रख दिया। पूछा उसने कि भाई मैंने यहाँ सर रखा था, सर कहाँ है? उन्होंने कहा कि यहाँ तो सर नहीं है। इसकी समझ में आया क्योंकि खूली देख चुका था। अब सुने अदादारों, बच्चा जुमला और बताए तमाम, वो देख चुका था कि पूरे रास्ते करबला से लेकर कूफे तक जब भी मैं मजलूम करबला का सर आगे लेके चलता हूँ, वो दूसरा सर अली अकबर का जहां भी रहता है वो जैसे मजबूर हो जाता है, वो ला के मेरे सर के साथ लगा देता है। कहीं भी पूरे असलाए राह ये दोनों सर जुदा नहीं हो। इसके जहन में आया कि कहीं और नहीं गया है, बल्कि ये सर जिस नैदे पर था उसी जगह होगा। अब जब भागता हुआ उस घर में गया तो क्या देखा कि लब से लब मिले हुए हैं। रुखसार मेरे लाल तेरी जुदाई। अब आप सोचिए कि ऐसे लम्हे जब हुसैन न बर्दाश्त कर पा रहे हो तो जिस वक्त जुदा किया होगा क्या कैफियत नहीं। मक्तल ये कहता है कि बड़ी हसरत से घोड़े पर बिठा तो दिया, लेकिन आलम ये हुआ कि घोड़ा जैसे जैसे तेजी से बढ़ता था हुसैन पीछे पीछे तेजी से कदम बढ़ाते हुए। एक मर्तबा अली अकबर को जब महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, घोड़े को महते घोड़े को एक मर्तबा रोक के पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि बाबा बड़ी तेजी से चले आ रहे। बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था। अरे क्या जुमला है अदादारों, साहिब औलाद का मतलब मैं क्या अर्ज करूं उस जुमले की कीमत कि जिस वक्त कहा है कि बाबा आपने तो रुखसत कर दिया। अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते। अली अकबर तुम साहिब औलाद होते। अज़ादारों बस सबके बस लम्हे के लिए बस जरा सा, क्योंकि मसाइब की यो मंजिल है कि मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के जिगर में इतनी ताकत है कि पूरी शहादत पढ़ दे। सारे हमारे दोस्त बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, न जाने कितने अछार नज़्म कर दिए लोहे के। क्या वाकई वो दर्द किसी ने आज तक बयान किया जो पहली सदा मक्तल से आई? बाबा खुदा हाफिज़। क्योंकि अब तक मक्तल में जो भी शहीद घोड़े से गिरा उसने मदद के लिए पुकारा, किसी ने खुदा हाफिज़ नहीं कहा। पहला शहीद है जो रेगदार कर में करबला में गिरते गिरते आवाज दे रहा है, बाबा खुदा हाफिज़, बाबा खुदा हाफिज़। मैं कहूँगा अली अकबर आपने खुदा हाफिज़ बाबा को बुलाया क्यों नहीं? कहा मुझे अच्छी तरीके से मालूम है अब बाबा से सबला न जाए, मक्तल में आने की ताब न होगी। हुसैन चले, बड़ी हिम्मत के साथ चले, लेकिन कहते हुए चले, या अली या अली या अली, यहाँ तक कि सराहने पहुंच गए। अब यहाँ से अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी मरहूम अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, कहते हैं कि हुसैन पहुंच तो गए
लेकिन अब जो निगाह उठाई तो देखा कि पूरा मक्तल भरा हुआ है। दादा इब्राहिम भी है, इस्माइल भी आए हुए हैं, यहाँ तक कि घराने के सभी अफराद शायद हुसैन अब उस मंजिल में आ गए थे, उस मंजिल में आए हैं कुर्बानी की। क्या इब्राहिम ने कुर्बानी दी जरूर है, इस्माइल देख जरूर रहे हैं, लेकिन ये वो तारीख की कुर्बानी है, किसी नबी के सामने से नहीं। सराहने बैठ के मर्तबा आहिस्ता से पूछा, ए मेरे लाल, ये हाथ सीने पर क्यों है? ये हाथ सीने पर क्यों है? दादा ने मुझे पूछना था कि मर्तबा रूह अली अकबर कहते हैं, बाबा जालिम नेज़े की यानी तोड़ के ये कह रहा था कि मैं देखता हूँ कि हुसैन में सब्र कितना है, देखता हूँ हुसैन में सब्र कितना है। बस ये सुनना था कि मर्तबा दो जानू हो के हुसैन एक दाने गर्म के बैठे, जख्म की तरफ देखा, अली अकबर की सूरत देखी, कलशी की अनी पकड़ी। ए बाबा बस ये कहना था, ये कहना था, मैं कहूँगा आता, अरे तेरे खैबर का उखाड़ा सीने से बर्छी का निकालना बड़ा मुश्किल था। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह ये कह के बर्छी की अनी तो निकाल ली। अब जो सूरज से सूरज मिली तो आलम ये था, रुखसार पर रुखसार सीने से लगाए हुए। ए मेरे लाल, अरे तेरे बाद ये दुनिया हो गई। एक खैमों से बच्चों को बुला ले किया, बच्चों हुसैन से लाशा नहीं उठ रहा, लाशे को ला के खैमे में रखा। किसी बीवी ने कहा लैला नजर नहीं आ रही। अब जो पिज्जा खैमे में गई तो क्या देखा, जनाब लैला कबीर पर्दे से आवाज दिए, मेरे लाल अब तो सुझाई नहीं। मेरे लाल जनाब अली अकबर की जख्मी सीने का वास्ता, मौला की मजलूमियत का वास्ता, बैठे हुए मोमिन की हाजात को पूरी फरमा दे। मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ भी मोमिन सफे अज़ा बिछा के बैठे हुए हैं, वे नबी का जहाँ कहीं भी आबाद हो, सबके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत, मोमिन की मुश्किलात को आसान फरमा। वास्ता है करबला वालों का, जहाँ कहीं भी बीमार और अजीज मोमिन मोमिनात हो, सबको शिफाए कामिल। या अल्लाह हम सबके इस पुरसे को कबूलियत का शरफ दिलाए। या अल्लाह आज के दायान मुमनीन मुजफ्फरनगर की तौफीक इन नौजवानों के पुरसे को कबूल फरमा। या अल्लाह इनके तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, सबको जवार मासूमी में जगह सरकार हजरत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, सबको सरकार के नाज़रीन में शुमार मैं नवाखानी के फराइज़ को अंजाम देने के लिए अजीम हैदर भाई और सोनू भाई की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए, नवाखानी का सिलसिला शुरू करें। मातम हुसैन
कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से, कुछ तो बतला दो ऐ मेरे दिल पर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से, बिन तुम्हारे मैं न पाऊंगी एक पल जिंदा, सच बताती हूँ हाँ ख्यालों में तेरी तस्वीरें अपने सीने से मैं लगाती हूँ, खा रही हूँ मैं दर बदर ठोकर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से, तेरी यादों में रात ढलती है, सुबह होती है, शाम आती है, देखने तुझको गमज़दा बहना दर पे आती है, घर में जाती है, खा रही हूँ मैं दर बदर ठोकर, कब आओगे मिलने बहना से भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से, नाम तो जिंदा हूँ हकीकत है, मौत बाकी है अब तो बस आनी, किस तरह दुखिया भाई है घर में वीरानी, मेरे असगर को साथ में लेकर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से, कैफियत दिल की क्या है सुगरा की, तेरी फुरकत में क्या दिखाऊं मैं, एक बहना को कितना भाई से प्यार होता है क्या बताऊं मैं, दाग फुरकत है आज भी दिल पर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से, एक वो दिन था जब भरा घर था, आज मैं हूँ और मेरी तन्हाई, आके बतला दे मेरे भाई, क्या करे अब ये तेरी माँ जाई, मुझको डसता है अब ये मेरा घर, कब आओगे मिलने बहना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलने बहना से भैया अली अकबर, कब आओगे
रोशनी तुम हो, हर खुशी तुम हो, जिंदगी तुम हो, जिंदगानी क्या गही तुम हो, आ गही क्या शे बंदगी तुम हो, याद आता है मुझको मेरा घर, कब आओगे मिलना से मेरे भैया अली अकबर, कब आओगे मिलना से भैया अली अकबर, कब आओगे मिलना से। ऐ शहीद करबला वावैला सदवा वैला, 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 अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या खातिमुन नबिय्यीन, अस्सलाम वालेकुम या अफजलुल मुरसलीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमतुल ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम इमाम हसन मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलाम वालेकुम इमाम मुहम्मद अल-बाक़िर, अस्सलाम वालेकुम इमाम जाफ़र अल-सादिक़, अस्सलाम वालेकुम जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाया अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल मरसलीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अला औलादिल हुसैन व सहाबातिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबल फज़ल अब्बास अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम इमाम मुर्शिद कादिम, अस्सलाम वालेकुम इमाम तक़ियुल जवाद, अस्सलाम वालेकुम इमाम अली मुत्तकी, अस्सलाम वालेकुम इमाम हसन अल-अस्करी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाया गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुइनल वफ़ाई वल फुक़रा, अस्सलाम वालेकुम मुशशियत व दुआर फी यौमिल जज़ा, अस्सलाम वालेकुम या शम्स शुमूस व अनीसल नफूस अय्युहल मनफून बिग़र्ज़िल फूस, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहस सुल्तान वल हसन अली इब्न मूसा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाया साहिब अल-असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम या शरीकल कुरबान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल-इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक नुरक व जअलना मिन अंसारिही व अमानिhi व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।